آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، پھر اچانک ایک مسئلہ آتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان خاموشی سے خود سے یہ نتیجہ نکال لیتا ہے، شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ یہ خیال اتنا عام ہو چکا ہے کہ آج کل لوگ ہر مشکل کو سیدھا اللہ کی ناراضگی سے جوڑ دیتے ہیں۔ نوکری نہ ملے، ناراضگی، رشتہ نہ ہو، ناراضگی، کاروبار میں نقصان، ناراضگی، دل بے چین، ناراضگی۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا واقعی ہر مشکل کا مطلب یہی ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر وہ لوگ جو اللہ کے سب سے قریب تھے، ان کی زندگیاں سب سے زیادہ آزمائشوں سے کیوں بھری ہوئی تھیں؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے مشکل کو ہمیشہ سزا سمجھا، لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ کچھ مشکلات سزا نہیں بلکہ کسی اور حقیقت کا دروازہ ہوں؟ آج کا انسان ایک عجیب دور میں جی رہا ہے، جہاں ہر چیز فوری چاہیے، سکون بھی فوری، کامیابی بھی فوری، اور دعا کا جواب بھی فوری۔ اور جب چیزیں ویسے نہیں ہوتی جیسا ہم چاہتے ہیں تو ہم فوراً یہ مان لیتے ہیں کہ شاید ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے یا ہم کسی ناراضگی کا شکار ہیں۔ لیکن حقیقت اتنی سادہ نہیں ہے جتنی ہم نے بنا لی ہے۔ کبھی کبھی مشکل آپ کے گناہ کی سزا نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے اندر چھپی ہوئی کسی کمزوری کو سامنے لانے کا ذریعہ ہوتی ہے۔ کبھی یہ آپ کو روکنے کے لیے آتی ہے، کبھی بچانے کے لیے، اور کبھی آپ کو وہاں لے جانے کے لیے جہاں آپ خود کبھی جانے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم مشکل کو دیکھتے ہی فیصلہ سنا دیتے ہیں، سوچے بغیر، سمجھے بغیر، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہم غلطی کرتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس غلط فہمی کو توڑنے والے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کب مشکل واقعی تنبیہ ہوتی ہے اور کب وہ آپ کے حق میں ایک پوشیدہ رحمت ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے اس فرق کو سمجھ لیا تو آپ کا ہر دکھ، ہر پریشانی اور ہر آزمائش آپ کو توڑنے کے بجائے آپ کو بنانے لگے گی۔ ہماری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم ہر مشکل کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، یعنی یا تو یہ سزا ہے یا پھر سب کچھ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر مشکل کا مطلب ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اگر آپ غور کریں تو زندگی میں آنے والی مشکلات کی نوعیت بھی مختلف ہوتی ہے۔ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، کچھ ایسی جو خاموشی سے اندر ہی اندر بدل دیتی ہیں، اور کچھ ایسی جو بظاہر نقصان لگتی ہیں مگر وقت کے ساتھ سمجھ آتا ہے کہ وہی سب سے بڑا فائدہ تھیں۔ آج کے دور کا انسان خاص طور پر ایک ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ وہ سوشل میڈیا پر دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگی کو ناپتا ہے۔ کسی کی کامیابی، کسی کی خوشی، کسی کی آسانی دیکھ کر وہ یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں؟ اور پھر جب اس کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے تو وہ اسے سیدھا اپنی ناکامی یا کسی ناراضگی سے جوڑ دیتا ہے۔ حالانکہ یہ سوچ ادھوری ہے، بلکہ بعض اوقات خطرناک بھی، کیونکہ یہ انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، اور مایوسی وہ جگہ ہے جہاں انسان سچ کو دیکھنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ آپ نے شاید نوٹ کیا ہو، کچھ لوگ مشکل میں آ کر اور زیادہ سنبھل جاتے ہیں، ان کی سوچ بہتر ہو جاتی ہے، ان کے فیصلے مضبوط ہو جاتے ہیں، اور کچھ لوگ وہی مشکل دیکھ کر ٹوٹ جاتے ہیں، خود کو قصوروار سمجھنے لگتے ہیں یا ہر چیز سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ یہ فرق کیوں آتا ہے؟ فرق اس بات میں نہیں ہوتا کہ مشکل کتنی بڑی ہے، فرق اس بات میں ہوتا ہے کہ ہم اس مشکل کو کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ہم ہر پریشانی کو صرف سزا سمجھیں گے تو ہم اس سے کچھ سیکھ نہیں پائیں گے، بلکہ خود کو مزید کمزور کر لیں گے۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ ہر مشکل کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہو سکتی ہے تو پھر ہمارا رویہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم سوال بدل دیتے ہیں، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا سے
इसके जरिए मुझे क्या सीखना है। और यही वो मोड़ है जहां इंसान अंधेरे से निकलकर समझ की रोशनी में आता है। लेकिन यहां एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या वाकई हर मुश्किल के पीछे कोई मकसद होता है, या कुछ मुश्किलात वाकई इंसान की गलतियों का नतीजा होती हैं? इसी फर्क को समझना जरूरी है, क्योंकि यही वो जगह है जहां हकीकत खुलती है। अब असल बात यहां से शुरू होती है। हर मुश्किल एक जैसी नहीं होती, और यही वो नुक्ता है जिसे नजरअंदाज करके हम खुद को गलत नतीजों तक पहुंचा देते हैं। अगर सादा अल्फाज में समझें तो जिंदगी में आने वाली मुश्किलात को 3 बड़ी किस्मों में तकसीम किया जा सकता है। पहली किस्म, वो मुश्किलात जो इंसान की अपनी गलतियों का नतीजा होती हैं। जब इंसान बार बार गलत फैसले करता है, हुदूद को तोड़ता है, और फिर उसके असरात उसकी जिंदगी में मसाइल की सूरत में जाहिर होते हैं। मिसाल के तौर पर, कोई शख्स लापरवाही से फैसले करता है, जल्दी में कदम उठाता है, या अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करता है, तो फिर जो नुकसान होता है वो सिर्फ आजमाइश नहीं होता, बल्कि एक वाज़ेह इशारा होता है कि कहीं ना कहीं रवैया दुरुस्त करने की जरूरत है। लेकिन यहां भी एक अहम बात है, यह सिर्फ सजा नहीं होती, बल्कि एक मौका होता है कि इंसान रुक कर खुद को देखे, अपनी गलती पहचाने और रास्ता बदल ले। दूसरी किस्म, वो मुश्किलात जो इंसान को संवारने के लिए आती हैं। ये वो मरहला होता है जहां बज़ाहिर सब कुछ ठीक होता है, इंसान कोशिश भी कर रहा होता है, नीयत भी साफ होती है, लेकिन फिर भी रास्ता आसान नहीं होता। यहां मुश्किल का मकसद गिराना नहीं होता, बल्कि मजबूत बनाना होता है। जैसे लोहा जब तक आग में ना जाए वो अपनी असल ताकत तक नहीं पहुंचता, इसी तरह इंसान भी कुछ मराहिल से गुजरे बगैर अपनी असल सलाहियत तक नहीं पहुंच सकता। तीसरी किस्म, वो मुश्किलात जो इंसान को किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए आती हैं। ये सबसे हैरानकुन हकीकत है, क्योंकि इस वक्त हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, लेकिन हकीकत में वही चीज हमें किसी ऐसी जगह जाने से रोक रही होती है जहां जाना हमारे लिए नुकसानदेह होता। कभी कोई मौका छिन जाता है, कभी कोई ताल्लुक खत्म हो जाता है, कभी कोई रास्ता बंद हो जाता है, और हम उसे अपनी बदकिस्मती समझते हैं। लेकिन वक्त के साथ अक्सर यही बात समझ आती है कि अगर वो चीज रह जाती तो शायद हम ज्यादा नुकसान में होते। असल मसला ये नहीं कि मुश्किल आई, असल मसला ये है कि हमने उसे समझे बगैर इसका मतलब खुद ही तय कर लिया। और जब इंसान बगैर समझे फैसला कर लेता है तो वो हकीकत से दूर हो जाता है। अब सवाल ये है, हम कैसे पहचानें कि हमारी मुश्किल इन 3 में से किस किस्म की है? अब सबसे अहम मरहला ये है, हम कैसे समझें कि जो मुश्किल हमारे सामने है वो हमारी अपनी गलती का नतीजा है, या हमें संवारने के लिए आई है, या हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रही है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे एक नजर में पहचान लिया जाए, लेकिन कुछ निशानियां ऐसी होती हैं जो रास्ता वाज़ेह कर देती हैं। सबसे पहले खुद को ईमानदारी से देखना पड़ता है, बगैर बहाना बनाए, बगैर खुद को बचाए। अगर आप अपनी जिंदगी के हालिया फैसलों पर नजर डालें और आपको बार बार यह महसूस हो कि जल्दीबाजी, गफलत या लापरवाही शामिल रही है, तो फिर बहुत इम्कान है कि यह मुश्किल आपको रोकने और दुरुस्त करने के लिए आई है। ऐसे वक्त में खुद को मजलूम समझने के बजाय यह सवाल ज्यादा जरूरी होता है, मैंने कहां गलती की? यह सवाल इंसान को कमजोर नहीं करता, बल्कि हकीकत के करीब ले आता है। लेकिन अगर आप देखें कि आपने पूरी कोशिश की, नीयत साफ रखी, और फिर भी रास्ता मुश्किल है, तो यहां कहानी मुख्तलिफ हो जाती है। यह वो मकाम होता है जहां इंसान को अंदर से मजबूत किया जा रहा होता है। उसे सब्र, बर्दाश्त और गहराई सिखाई जा रही होती है। यह वो मरहला होता है जहां जल्दी हार मान लेना असल नुकसान बन जाता है। और फिर एक तीसरी सूरत होती है जो सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है। जब आप किसी चीज के बहुत करीब होते हैं, सब कुछ ठीक लग रहा होता है, लेकिन अचानक रास्ता बंद हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल गया।
लेकिन अगर आप माजी पर नजर डालें तो अक्सर ऐसे वाकयात में एक खामोश इशारा छुपा होता है कि शायद वो रास्ता इतना महफूज नहीं था जितना आप समझ रहे थे। यहां असल इम्तिहान ये होता है कि इंसान फौरन मायूस हो जाए या कुछ वक्त देकर हकीकत को समझने की कोशिश करे। लेकिन एक और बारीक नुक्ता भी है जो अक्सर नजर से ओझल रहता है। कभी कभी एक ही मुश्किल में ये तीनों पहलू शामिल होते हैं, यानी उसमें हमारी इस्लाह भी होती है, हमारी तरबियत भी, और हमें किसी नुकसान से बचाना भी। इसीलिए जल्दी में नतीजा निकाल लेना हमें असल मकसद से दूर कर देता है। असल समझ तब आती है जब इंसान रुक कर, सोच कर और अपने अंदर झांक कर देखता है, और यही वो लम्हा होता है जहां से इंसान की सोच बदलना शुरू होती है। अब एक और खतरनाक पहलू को समझना जरूरी है, और वो ये है कि अगर इंसान अपनी मुश्किल का मतलब गलत समझ ले तो वो खुद ही अपने लिए मजीद मुश्किलात पैदा कर लेता है। आज बहुत से लोग एक ही सोच में कैद हो चुके हैं। जैसे ही जिंदगी में कोई रुकावट आती है वो फौरन ये मान लेते हैं कि मेरे साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा। ये सोच आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर एक खामोश जहर की तरह फैलती है। पहले वो अपने बारे में मनफी राय बनाता है, फिर हालात से बदगुमान होता है और आखिरकार हर चीज को बेमानी समझने लगता है। यहां सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि इंसान सीखने का दरवाजा बंद कर देता है, क्योंकि जब आप पहले ही फैसला कर लें कि यह सब मेरे खिलाफ है तो फिर आप उसमें छुपी हुई किसी भलाई को देख ही नहीं सकते। आपने शायद देखा हो, कुछ लोग एक ही मुश्किल से गुजरकर आगे निकल जाते हैं और कुछ लोग वहीं रुक जाते हैं। फर्क सिर्फ हालात में नहीं होता, फर्क सोच में होता है। जो शख्स हर मुश्किल को अपनी नाकामी समझता है वो खुद को कमजोर करता जाता है, और जो शख्स हर मुश्किल में कोई सबक तलाश करता है वो आहिस्ता आहिस्ता मजबूत होता जाता है। लेकिन यहां एक और बड़ी गलती भी होती है। कुछ लोग हर चीज को इतना आसान बना लेते हैं कि वो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो हर मुश्किल को सिर्फ एक इम्तिहान समझकर अपनी इस्लाह का पहलू नजरअंदाज कर देते हैं। ये भी एक खतरनाक रवैया है, क्योंकि अगर इंसान अपनी गलती को पहचानेगा ही नहीं तो वो उसे दुरुस्त कैसे करेगा। असल तवाजुन ये है कि इंसान ना तो हर चीज को सिर्फ सजा समझे और ना ही हर चीज को बगैर सोचे सिर्फ आजमाइश कहकर आगे बढ़ जाए, बल्कि हर हालत में सच्चाई तलाश करे। यही वो रवैया है जो इंसान को अंधी तकलीद से निकालकर हकीकी समझ की तरफ ले जाता है। और जब इंसान इस मकाम पर पहुंचता है तो उसकी जिंदगी में एक बड़ी तब्दीली आती है। वो मुश्किल से भागता नहीं बल्कि उसे समझने की कोशिश करता है, और यही वो लम्हा होता है जहां से इंसान की असल तरक्की शुरू होती है। यहां आकर एक और हकीकत सामने आती है। मुश्किल खुद इतनी खतरनाक नहीं होती जितना खतरनाक उस वक्त हमारा रद्द अमल होता है। अक्सर इंसान मुश्किल में आकर दो इंतहाओं में से किसी एक का शिकार हो जाता है। या तो वो बिल्कुल टूट जाता है, या फिर इतना सख्त हो जाता है कि कुछ सीखने के लिए तैयार ही नहीं रहता। हालांकि असल इम्तिहान ये नहीं कि मुश्किल आई या नहीं, असल इम्तिहान ये है कि आपने इस मुश्किल के साथ क्या किया। क्या आपने खुद को संभाला या खुद को छोड़ दिया? क्या आपने सोचा या सिर्फ रद्द अमल दिया? ये फर्क बहुत बारीक है, लेकिन यही फर्क इंसान की पूरी जिंदगी का रुख बदल देता है। आज के दौर में एक बड़ी कमजोरी ये भी है कि हम फौरी सुकून चाहते हैं। जैसे ही परेशानी आती है हम फौरन कोई ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जो हमें आर्जी सुकून दे दे, चाहे वो तवज्जो हटाना हो, चाहे खुद को मसरूफ रखना हो, या हकीकत से बचना हो। लेकिन ये सब वक्ती हल होते हैं। असल मसला वहीं का वहीं रहता है। मुश्किल का असल फायदा तब होता है जब इंसान उसके साथ बैठकर उसे समझने की कोशिश करे। यह आसान नहीं होता, क्योंकि उसमें इंसान को खुद का सामना करना पड़ता है। अपनी कमजोरियां देखनी पड़ती हैं, अपनी गलतियां माननी पड़ती हैं और अपनी सोच को बदलना पड़ता है। लेकिन यही वो अमल है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। एक और अहम बात भी समझ लें,
हर मुश्किल फौरी तौर पर समझ नहीं आती। कुछ चीजें वक्त मांगती हैं, कुछ हकीकतें देर से वाज़ेह होती हैं, और यही वो जगह है जहां सब्र का असल मतलब सामने आता है। सब्र सिर्फ खामोश रहने का नाम नहीं, बल्कि ये एक शऊरी फैसला होता है कि इंसान जल्दी में कोई गलत नतीजा नहीं निकालेगा। वो वक्त देगा, सोचेगा और फिर समझने की कोशिश करेगा। ये रवैया इंसान को टूटने से बचाता है, और जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है तो फिर मुश्किल उसके लिए बोझ नहीं रहती, बल्कि एक रास्ता बन जाती है। यहां पहुंचकर एक हैरान कुन तब्दीली शुरू होती है। वही मुश्किल जो पहले बोझ लग रही थी, आहिस्ता आहिस्ता एक मानी लेने लगती है। ये तब्दीली बाहर नहीं आती, ये अंदर होती है। इंसान की सोच बदलने लगती है। वही हालात, वही मसाइल, लेकिन देखने का जाविया बदल जाता है। पहले वो हर रुकावट को अंजाम समझता था, अब वो उसे एक मरहला समझने लगता है। पहले वो हर नुकसान को अपनी हार मानता था, अब वो उसमें कोई इशारा तलाश करता है। ये तब्दीली अचानक नहीं आती, ये तब आती है जब इंसान बार बार खुद को संभालता है, जल्दी में फैसला नहीं करता और हर हाल में सच्चाई को देखने की कोशिश करता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वही मुश्किल जिसने कभी आपको बेचैन किया था, आपको एक नई समझ दे चुकी होती है। आपको अपनी कमजोरियां नजर आने लगती हैं, आप अपने फैसलों में एहतियात करने लगते हैं, आप लोगों को, हालात को और खुद को बेहतर अंदाज में समझने लगते हैं। और यही वो मकाम है जहां मुश्किल एक नेमत की शक्ल इख्तियार करने लगती है, क्योंकि अब वो आपको गिरा नहीं रही, बल्कि आपको उठा रही है। लेकिन एक और गहरी बात यहां समझने की है, ये तब्दीली सिर्फ इसी इंसान के साथ होती है जो रुक कर सोचता है, जो हर हाल में सीखने के लिए तैयार होता है, जो अपनी अना को एक तरफ रखकर हकीकत को कबूल करता है। वरना वही मुश्किल किसी दूसरे इंसान के लिए सिर्फ तकलीफ बनकर रह जाती है। यानी मुश्किल खुद फैसला नहीं करती कि वो आपके लिए क्या बनेगी, ये फैसला आपका रवैया करता है। अगर आपने उसे सिर्फ दुख समझा तो वो दुखी रहेगी, अगर आपने उसमें सबक तलाश किया तो वो आपकी जिंदगी का मोड़ बन जाएगी। और यही वो राज है जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। अब आखिर में वो बात समझना जरूरी है जो पूरी गुफ्तगू का खुलासा है, और यही वो नुक्ता है जिसे समझने के बाद इंसान का अंदर बदलना शुरू हो जाता है। हकीकत यह है कि हर मुश्किल ना तो सजा होती है और ना ही हर मुश्किल खुद ब खुद कोई खास पैगाम होती है। असल बात इससे भी ज्यादा गहरी है। मुश्किल एक हालत है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं होता जो हम फौरन अपने जहन से निकाल लेते हैं। इंसान अक्सर अपनी महदूद सोच में एक ही फैसला कर लेता है और फिर उसी फैसले को हकीकत समझ लेता है। लेकिन जिंदगी इतनी सादा नहीं। एक ही वाकया किसी एक इंसान के लिए बर्बादी का सबब बन सकता है, और इसी तरह वही वाकया किसी दूसरे इंसान के लिए नई जिंदगी का आगाज भी बन सकता है। फर्क कहां है? फर्क इस बात में है कि आपने इस तजुर्बे को कैसे लिया। क्या आपने खुद को ही कसूरवार समझकर खुद से लड़ना शुरू कर दिया, या आपने रुक कर यह सोचा कि इसमें मेरी इस्लाह कहां है? क्या आपने हर चीज को अपनी बदकिस्मती समझ लिया, या आपने यह देखा कि शायद यह रास्ता आपके लिए नहीं था? यही वो इंतखाब है जो हर इंसान रोज करता है, बाज़ औक़ात शऊरी तौर पर और बाज़ औक़ात लाशऊरी तौर पर। और यही इंतखाब आपकी जिंदगी का रुख तय करता है। अगर इंसान हर मुश्किल को सिर्फ नाराजगी समझ ले तो वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह से भी बदगुमान होने लगता है और अपने आप से भी। लेकिन अगर वो हर मुश्किल में ये गुंजाइश रखे कि शायद इसके अंदर कोई छुपी हुई भलाई हो, तो फिर वो टूटने के बजाय सुनरने लगता है। असल पैगाम यही है कि जिंदगी में आने वाली हर चीज को एक ही तराजू में ना तोलें। कभी रुकें, कभी सोचें और कभी खुद से ईमानदारी के साथ सवाल करें, क्योंकि बाज़ औक़ात जो चीज हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही हमें सबसे ज्यादा बदल देती है, और जो चीज हमें सबसे ज्यादा रोकती महसूस होती है वही हमें असल रास्ते की तरफ मोड़ रही होती है। इख्तिताम पर सिर्फ एक बात याद रखें,
مشکل آپ کے خلاف بھی ہو سکتی ہے اور آپ کے حق میں بھی۔ فیصلہ ہمیشہ حالات نہیں کرتے، فیصلہ آپ کا رویہ کرتا ہے۔